Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you are fine and safe. We are studying chapter number 15, sampling and sampling distribution. We have already discussed in previous lecture sampling distribution, purpose or aims of the sampling, probability sampling and non-probability sampling, the difference between parameter and statistic, difference between population and sample, sampling frame, sampling units, sampling errors and non-sampling errors, bias. These all the topics are discussed earlier in previous lecture. Today we are going to discuss the topic sampling and types of sampling. What is sampling? It is a process of selecting samples from the population. We may adopt a way of drawing the samples with the involvement of chances or without the involvement of chances. Hence, sampling may be of two types technically. The first is probability or random sampling, and second one is non-random or non-probability sampling. First, what is random or probability sampling? When each sampling unit in a population has known probability of its being included in the sample, then the sampling is called random or probability sampling. In this type of sampling, the investigator does not exercise his discretion in the choice of items. So, the personal preference is eliminated and selection is only based on chance or probability. Understand? Only with random sampling one can guarantee freedom from selection bias. Now, non-probability or non-random sampling. When the selection of samples is not based on chance or probability but based on personal preference is called non-random or non-probability sampling. In this type of sampling, the investigator exercises his own discretion in the choice of item. Okay. Random or probability sampling. Random or probability sampling may further be classified as simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, and cluster sampling. Keeping in view the scope of intermediate course of study, we are explaining only simple random sampling. Non-random and non-probability sampling. Non-random or non-probability sampling may further be classified as judgment or purposive sampling and quota sampling. Now, simple random sampling. A process of selecting a sample of size n units, where n is equal to 1, 2 up to so on, capital N showing population, number of population units from the finite population of size n units in such a way that each unit in population has an equal probability of being included in the sample, and each possible sample of the same size has an equal probability of being selected, is called simple random sampling. Number of all possible samples in case of with replacement is equal to n raised to power n, where capital N is the population size and small n is the sample size. Number of all possible samples in case of without replacement, it is equal to NCN, and it is also equal to n factorial divided by n factorial into n minus n factorial.
Simple random sampling may be appropriate if the sampling unit can be easily identified, the population is small and homogeneous. Selection of simple random sample. A simple random sample may be selected by the following methods. Number 1, lottery method or goldfish bowl procedure. Number 2, using a random number table. Number 3, using calculators and computers. What is lottery method? This is the most popular and simplest method. According to this method, all units of the population are assigned numbers from 1 to n, are written on slip of papers or cards or balls of equal size, shape and color. These folded slips of papers or cards or balls are put in a bowl or a basket or an urn or a bag and mixed thoroughly. The desired number of units are drawn out blindly, one by one, mixing thoroughly after each drawing so that each selected unit will be truly random. The sample of size n thus selected will be a simple random sample. This method is suitable when the population size is not too large and finite. If the population size is large or infinite, an alternative method is to use the random number table, which have been developed to take the place of slips of paper, card or balls. कि लॉटरी मेथड क्या है, आपको जैसे पता है कि स्लिप्स पे नाम लिख दिए जाते हैं और या फिर कोई बॉल्स पे कोई इस तरह कोई नाम या इस तरह वो लिख दिए जाते हैं या कार्ड्स के ऊपर और उनको फिर जो है फोल्ड करके रखा जाता है या बॉल्स को किसी उसमें बॉल में डाल दें या किसी बास्केट में डाल दें या किसी बैग के अंदर मिक्स करके उनको, तो फिर उनमें से जो है वो ड्रॉ किया जाता है और वो सैंपल क्या होगा, वो सिंपल रैंडम सैंपल होगा। और वो किस वक्त हम यूज़ करते हैं ये वाला मेथड, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता, यानी फाइनाइट होता है। जब इनफाइनाइट होगा हमारे पास पॉपुलेशन साइज या बहुत बड़ा होगा तो उस वक्त हम फिर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, नेक्स्ट मेथड है यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल। तो फिर हम रैंडम नंबर टेबल जो है उसके लिए यूज़ करते हैं सिंपल रैंडम सैंपल ड्रा करने के लिए। और दिस मेथड इज टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में रैंडम नंबर टेबल के बारे में कि क्या है। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स आर टेबल्स ऑफ रैंडमली अरेंज डिजिट 0 to 9। आपने पढ़ा है ना कि 0 to 9 होते हैं रैंडम नंबर्स जो हैं। ईच डिजिट हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एट एनी ड्रा, और हर डिजिट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी 0 की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी कि 1/10 प्रोबेबिलिटी है, 1 की भी 1/10 होगी, 2 की भी, टोटल 10 है आपके पास डिजिट्स और हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है बीइंग अ सैंपल सेलेक्ट होने की वो सेम है। ठीक है, जिस तरह के हम जो है रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं कहते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन में अभी पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि उसमें आपकी पर्सनल जजमेंट जो है उसमें उसका कोई काम नहीं है इन्वेस्टिगेटर की। उसमें क्या होता है कि रैंडमली आप चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, उसमें आपकी चॉइस शामिल नहीं है। आपने एक चीज़ों को आपने रखा हुआ है और आपने उसमें से चीज़ ड्रॉ करनी है, जैसे कार्ड्स हैं आपके पास या बॉल्स हैं या आपके पास इवन आप डाइस का देख लें कि उसमें से आपने नंबर जो है वो कोई भी आपने छक्का आपको चाहिए या आपको जो भी नंबर उस पर आता है वो क्या है, वो रैंडम सैंपल होगा। ठीक है, और हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, हर एक की 1/6 है। ठीक है, तो वो क्या होगा, रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सेकंड मेथड क्या है कि रैंडम नंबर टेबल से, तो ईच डिजिट हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एट एनी ड्रॉ। These tables are 1 digit, 2 digit, 5 up to so on 5 digit numbers are separated into square blocks of numbers.
ठीक है। और आप ये पढ़ चुके हैं कि ये 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर, ये पीछे हम रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि 1 डिजिट नंबर इसमें कौन से हैं, 2 डिजिट कौन से हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन। If the population consists of n sampling units and we want to select a sample of size n, then we assign numbers from 1 to n or 1 to n minus 1 to all the units of the population. Then we consult a random number table and select randomly a starting point horizontally, vertically or diagonally। जैसे मैंने आपको पहले भी उस चैप्टर में बता चुकी हूँ कि इस टेबल को आप हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं, आप वर्टिकली कॉलम वाइज भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डायगनली भी यूज़ कर सकते हैं रैंडम नंबर जो है उसमें से ड्रॉ करने के लिए। We note down the number discarding a number that is greater than n and that which is repeated if sampling is done without replacement. Continuing this process of selection until the desired sample size n is selected. ठीक है, कि 1 से n तक हमारे पास नंबर है और हम n से जो बड़ा नंबर होगा, यानी फर्ज किया n हमारा 100 है, तो 100 या n हमारा जो है वो 9 है नंबर, तो 9 से बड़ा जो नंबर होगा हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये पीछे हम ये सारा प्रोसेस पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से हमने नंबर जो है, जितने नंबर हमसे कहा जाएगा या उस क्वेश्चन की जो डिमांड होगी, हम उसके मुताबिक नंबर जो है वो सिलेक्ट करेंगे एज अ सैंपल। ठीक है, थर्ड इसमें जो मेथड है वो है यूजिंग कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स। In spite of random number table, simple random samples can also be selected mechanically by using electronic calculators which have the key RAND। आपने देखा है उसके ऊपर RAND कैलकुलेटर के ऊपर लिखी होती है, एक बटन उसमें होता है। एंड कंप्यूटर्स विच हैव द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑफ रैंडम नंबर्स फॉर द सैंपल सिलेक्शन एग्जाम। और इसी तरह से कंप्यूटर में भी के सॉफ्टवेयर में भी ये आपके पास होता है कि रैंडम नंबर का एक जो है वो उसमें की होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच सिलेक्शंस आर द हज एप्लीकेंट्स, बैलेटिंग, प्राइज बॉन्ड्स एंड हज की जो बैलेटिंग होती है, जो एप्लीकेशन लोग देते हैं और उसमें वो कहते हैं ना कि कुरानदाजी में फलां का नाम निकल आया हज के लिए, फलां का नहीं निकला, तो वो बैलेटिंग जो होती है। ठीक है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स ड्राज जैसे प्लॉट्स की होती है, जैसे DHA है या बहरिया था या इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि बैलेटिंग करते हैं लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन जमा की होती हैं और उनमें से बैलेटिंग होती है। फर्ज किया 100 प्लाट हैं तो 100 लोगों को देंगे और हजारों ने एप्लीकेशन दी होगी, तो इस तरह से बैलेटिंग होती है। और ये सारा क्या है, ये कैलकुलेटर या कंप्यूटर की मदद से रैंडम नंबर जो हैं वो ड्रा किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि इसमें हम आगे इसको देखेंगे थ्रू एग्जांपल, तो वो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। Sampling distribution of means. As we know, statistic or mean is a random variable, so a probability distribution may be prepared by considering all possible values of the statistic. It is defined as the probability distribution of statistic is called sampling distribution. Being a probability distribution, the sampling distribution of a statistic is usually expressed in tabular form. However, standard sampling distribution are expressed in equation form. Steps for making sampling distribution. Number 1, sampling distribution of a sample mean. Sampling distribution of difference between two sample means. A sampling distribution is usually judged by considering its following aspects. The first aspect is arithmetic mean of the distribution. Second one is variance of the distribution. The third one is functional form of the distribution. Here the mean means is how it looks if graphed. Understand? Example 15.1 Part A on page 161 in your book.
The question is, a population consists of 4 numbers 3, 7, 11 and 15. Considering all possible samples of size 2 which can be drawn with replacement from this population, find the population mean, the population standard deviation, the mean of the sampling distribution of means, the standard deviation of the sampling distribution of means, and verify third and fourth directly, part third and part 4 directly from part 1 and part 2 by one of suitable formula. The solution is, सबसे पहले जब भी आप सैम्पलिंग का क्वेश्चन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, पॉपुलेशन मीन। ठीक है, आपको ये जो वैल्यूज गिवन है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये पॉपुलेशन है आपके पास 3, 7, 11 एंड 15। अब उसने कहा है कि कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। अब सैंपल साइज किससे हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, और स्मॉल एन आपके पास क्या है, 2 है, और कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन को शो कर रहा है, और वो कितने नंबर्स हैं आपके पास, 4। कैपिटल एन आपके पास क्या है, 4 है। अब सबसे पहला जो स्टेप आपने किसी भी सैम्पलिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना है वो है पॉपुलेशन मीन आपने फाइंड करना है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन का क्या फार्मूला है, म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन शोइंग पॉपुलेशन साइज। ठीक है, आपने क्या करना है, समेशन एक्स इन तमाम वैल्यूज को आपने प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ रही है 9। ये क्या है, पॉपुलेशन मीन है आपके पास। अब आपने पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कहा है, तो वेरिएंस पहले फाइंड करके जो भी आंसर होगा उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब पॉपुलेशन वेरिएंस को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, अब x आपके पास फर्स्ट क्या है, 3 है, सेकंड 7 है, थर्ड 11 है और फोर्थ 15 है। ठीक है, आपने क्या करना है, मीन आपके पास 9 है, सिग्मा स्क्वायर आप 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 9 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आपके पास सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, और इस 20 का जब अंडर रूट आप लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ जाएगा जो कि आपके पास आ रहा है 4.47। ठीक है, अब थर्ड स्टेप इसमें देखें, पहला क्या था, आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड किया, सेकंड इसमें क्या था, आपने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया या पॉपुलेशन वेरिएंस आप फाइंड करते हैं, यहाँ उसने स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है, क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आपने करना है। थर्ड स्टेप इसमें आता है कि आपने ये देखना है कि आपको यहाँ पे जो है वो सैंपल जो ड्रा किए गए हैं वो कौन सा केस है, विद रिप्लेसमेंट केस है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। सैंपल जो ड्रा किए गए हैं वो विद रिप्लेसमेंट किए गए हैं या के विदाउट रिप्लेसमेंट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है यह है विद रिप्लेसमेंट केस है, सैंपल जो ड्रा किए गए हैं विद रिप्लेसमेंट ड्रा किए गए हैं। ठीक है, अब विद रिप्लेसमेंट में आपको पीछे अभी मैं बता के आई हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स के अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपने पढ़ा, उसमें क्या है कि विद रिप्लेसमेंट केस में इसका क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स जब हम जो है वो फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल ऑल पॉसिबल सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू n रेज टू पावर n, कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। अब कैपिटल N आपके पास क्या है, 4 है, और स्मॉल n क्या है, साइज 2 है आपके पास, तो n आपके पास क्या है, 4, तो आपके पास n रेज टू पावर n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 2। जब 4 रेज टू पावर 2 आप करेंगे तो 4 4 सा 16 आपके पास ये सैंपल बनेंगे। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनेंगे आपके पास, 16। अब आपने 16 सैंपल जो है वो बनाने हैं।
अब विद रिप्लेसमेंट केस है, आपने पॉपुलेशन नंबर जो है उनको सामने रखना है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या होगा, ये अपने साथ भी बनाएगा क्योंकि रेपिटेशन होती है, और इसमें जब आपने एक 3 उसमें से निकाला तो उस जैसा 3 आपने पॉपुलेशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसलिए इसमें ये अपने साथ भी सैंपल जो है ये बनाएंगे क्योंकि उसमें उस जैसा 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सैंपल क्या बनेगा, 3 3 यानी 3 अपने साथ बनाएगा, फिर 3 आगे 7 के साथ बनाएगा, 3 7 3 11 3 15, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 7 के साथ बनाना है। आपको मैंने वो टेबल सा पीछे अभी पिछले लेक्चर में बताया है, या आगे भी अभी आपको बताऊंगी कि कैसे आपने सैंपल जो है वो ड्रा करने हैं। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सैंपल किस तरह ड्रा करते हैं, ठीक है। आपको विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2 के सैंपल जो है वो बनाने मैंने बताए मैं। अब इसमें नेक्स्ट जो आपने नंबर कौन सा है, 7 है। अब 7 3 के साथ बनाएगा, फिर अपने साथ बनाएगा, फिर 11 के साथ बनाएगा, फिर 15 के साथ सैंपल बनाएगा, ठीक है। 7 3 7 7 7 11 एंड 7 15। अब 11 11 3 11 7 11 11 एंड 11 15, ठीक है। फिर 15 3 15 7 15 11 एंड 15 15, ये सैंपल बन गए। इनके कोरेस्पॉन्डिंग अब आपने मीन्स, जैसे मैंने आपको टेबल बना के बताया था पीछे, आपने टेबल भी बना सकते हैं, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप सैंपल मीन फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट क्या होगा, 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास फर्स्ट मीन क्या आ गया, 3 आ गया। 3 + 7 10 10 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास अगला मीन क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरह से 3 + 11 14 14 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास मीन आ गया 7। इसी तरह से तमाम आपने मीन्स फाइंड कर लिए। अब आगे आपने क्या करना है, आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आप बनाएंगे, आपने एक्स बार जो ये मीन फाइंड किए हैं इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे एक्स बार। अब कैपिटल एक्स बार आप लिखें तो वो इक्वल टू स्मॉल एक्स बार होगा, तो स्मॉल एक्स बार से शो करें या कैपिटल से, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एक्स बार आपके पास क्या होगा, अब इसमें से वैल्यूज जो है आप देखें कौन कौन से नंबर हैं, आप जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे, आप इसको एक एक दफ़ा ही लिखेंगे। इसमें देखें फर्स्ट 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है और 15 है। ये नंबर्स हैं आपके पास, आप इनको इसी तरह लिख देंगे जैसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, उसी तरह से ये आपने बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपके पास ये एक्स बार का कॉलम आपने लिख लिया। अब आपने फ्रीक्वेंसी इसकी बनानी है। कैसे बनाएंगे, जैसे आप उसमें किया करते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अब 3 आप देखें, 3 इन मीन जो मीन्स आपने फाइंड की, इसमें 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 टाइम है, ठीक है। तो आपने 1 लिख दिया फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट उसमें। 5 अब देखें कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2, कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स, तो आपने 2 लिख दिया। अब 7 इन मीन्स के अंदर देखें कितनी दफ़ा है, 1 2 3, 3 टाइम्स 7 है। इसी तरह से 9 जो है वो 4 टाइम्स है, 11 3 टाइम है, 13 2 टाइम्स है और 15 1 टाइम है। और हमेशा ये याद रखें कि फ्रीक्वेंसी जो आपने बनाई उसका सम जो होगा वो उतना होगा जितने आपके नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। अब नंबर ऑफ सैंपल्स आपके कितने थे, 16 थे, तो आपके देखें फ्रीक्वेंसी का सम भी 16 आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है आपने सैंपल ठीक नहीं बनाए या आपने मीन ठीक कैलकुलेट नहीं किए, आप अपने क्वेश्चन को चेक करेंगे, ठीक है। तो सम आपका फ्रीक्वेंसी का उतना होना चाहिए जितने आपके नंबर ऑफ सैंपल्स बने। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स बार लेना है। एफ ऑफ एक्स बार क्या है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप लेते होते थे, हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करना है। एफ ऑफ एक्स बार क्या है, ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 1 डिवाइडेड बाय 16, हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करना है, टोटल ऑफ उस पे एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, समेशन एफ पे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 16, 2 डिवाइडेड बाय 16, 3 डिवाइडेड बाय 16, 4 डिवाइडेड बाय 16, फिर 3 डिवाइडेड बाय 16, 2 डिवाइडेड बाय 16 एंड 1 डिवाइडेड बाय 16। अब आप देखें, आपने म्यू एक्स बार, मीन ऑफ द सैम्पलिंग मीन आपने फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होता है, म्यू एक्स बार के, और उसका क्या फार्मूला है, समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार,
ठीक है। आपको कॉलम कौन सा चाहिए, एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम आपने फाइंड किया इसको उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक्स बार की वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे कॉलम को एक्स बार के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे फर्स्ट एक्स बार आपके पास क्या है, 3 है, और फर्स्ट एफ ऑफ एक्स बार क्या है, 1/16, तो 3 इंटू 1/16 आपके पास ये आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरह से 5 और यहाँ पे 2 है तो 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइडेड बाई 16 आपके पास ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट आपका 7 वैल्यू है, ठीक है, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपकी एफ ऑफ एक्स बार जो है वो 3 डिवाइडेड बाई 16, तो 7 3 ज़ा 21, 21 डिवाइडेड बाई 16 ये आपके पास आ गई। इसी तरह से 9 है आपका, 9 के सामने 4/16 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 36 डिवाइडेड बाई 16। फिर 11 है, 11 के सामने 3 है, 11 3 ज़ा 33, 33 डिवाइडेड बाई 16, 13 2 ज़ा 26 हो जाएगा और 26 डिवाइडेड बाई 16, 15 1 ज़ा 15, 15 डिवाइडेड बाई 16 ये आपके पास आ गया। और इसका टोटल क्या आ रहा है, 144 डिवाइडेड बाई 16 आपने यहाँ पे लिख दिया कि समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार किसके इक्वल है, 144 डिवाइडेड बाई 16, और ये आ रहा है इक्वल टू 9। और यहाँ पे आप वेरीफाई इसको कर लें कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और आप ये हमेशा याद रखें कि विद रिप्लेसमेंट केस है चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, म्यू एक्स बार हमेशा म्यू के ही इक्वल होगा, ठीक है, कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग मीन इज ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। म्यू एक्स बार, अब देखें म्यू आपके पास 9 आ रहा था, तो म्यू एक्स बार जो आपने कैलकुलेट किया वो भी आपके पास 9 है, तो यहाँ पे आपने ये वेरिफिकेशन भी इसकी कर दी कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। नेक्स्ट आपने सैम्पलिंग जो है आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग मीन आपने वो फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स बार से उसको हम डिनोट करते हैं, और वो इक्वल है अंडर रूट समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको कॉलम किसका चाहिए, म्यू एक्स बार तो आप फाइंड कर चुके हैं, आपको कौन सी इसमें फार्मूले में वैल्यूज चाहिए, कौन से कॉलम का सम चाहिए, एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब आपने ये कॉलम फाइंड करना है, ठीक है, एक्स बार की वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाएं और उसको एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करते जाएं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 1/16 ये आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरह से नेक्स्ट एक्स बार की जो वैल्यू है वो है 5, 5 5 ज़ा 25, इसका स्क्वायर ले लेंगे और उसके कोरेस्पॉन्डिंग 2 डिवाइडेड बाई 16 एफ ऑफ एक्स बार है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 2 50 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरह से 7 का होल स्क्वायर लेंगे, 49 हो जाएगा, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 147 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। फिर 9 है, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16 ये आपके पास 324 डिवाइडेड बाई 16 आ गई। इसी तरह से 11 का स्क्वायर लेंगे, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 363 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरह से 13 का आप स्क्वायर लेंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स बार 2/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 338 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरह से 15 का स्क्वायर लेंगे, उसको 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 225 डिवाइडेड बाई 16। और इसका सम आपके पास आ रहा है समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार 1456 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 91 आ रही है इसको डिवाइड करने से, माइनस म्यू एक्स बार आपके पास 9 है और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10 अंडर रूट 10, आपके पास ये इक्वल आ जाएगा सिग्मा एक्स बार 3.16। अब आपने जो है इसको करना है तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है ये विद रिप्लेसमेंट केस में आपने पीछे आपको मैं बता चुकी हूँ ये किसके इक्वल होता है, जब आप वेरिफिकेशन करते हैं इट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन के विद रिप्लेसमेंट केस में, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा था, उसकी 20 था, 20 डिवाइडेड बाय एन आपके पास है 2, तो ये इक्वल टू 10 आ गया। अब देखें सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है वो भी आपके पास 10 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करने से भी आपके पास 10 आ रहा है, तो 10 इक्वल टू 10 ये आपके पास ये देखें 3 पॉइंट अगर अंडर रूट लेते हैं उसका स्टैंडर्ड
डेविएशन देखते हैं तो वेरिफिकेशन देखें, सिग्मा एक्स बार भी आपके पास 3.16 है, और यहाँ पे जब इस फार्मूले से आप उसको देखते हैं विद रिप्लेसमेंट केस है आपके पास, तो ये भी 3.16 है। ये दोनों आपने इक्वल बता दिए हैं। अब इसका पार्ट बी है, वो आपने विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो उसमें यूज़ करने हैं, सैंपल जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट केस से आपने करना है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट केस में जब नंबर ऑफ सैंपल, बाकी तो सारा प्रोसेस वही होगा कि म्यू भी आप उसी तरह से फाइंड करते हैं, सिग्मा स्क्वायर भी, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस। जो थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ सैंपल्स, वो डिफरेंट है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट केस में फार्मूला भी आपने पढ़ा है, क्या है, NCN, ठीक है। कैपिटल N 4 है और स्मॉल n 2 है, तो ये 4C2 हो जाएगा। और जब इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आता है, यानी नंबर ऑफ सैंपल 6 होंगे, आपके पास 6 सैंपल बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट केस में। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास हैं 3, 7, 11 एंड 15। अब विदाउट रिप्लेसमेंट केस में आप ये याद रखें कि उससे जो सैंपल हमने पॉपुलेशन से ड्रॉ किया उसकी जगह उस जैसा सैंपल हमने डाला नहीं है, ठीक है। तो वो सैंपल उसमें रिपीटिशन नहीं हो सकती, वो दोबारा सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सैंपल उसमें एक दफ़ा निकल चुकी है वो वैल्यू, तो उसमें से वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं होगी उस पॉपुलेशन में। अब देखें, अब 3 जो है ये अपने साथ नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, 3, 7, 3, 11, 3, 15, ठीक है। इस तरह से 7 जो है वो पीछे नहीं आएगा, क्योंकि पीछे वाला ख़त्म हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब वो आगे जाएगा 7, 11, 7, 15, ठीक है। इसी तरह से 11, 15 के साथ बनाएगा। ये 6 सैंपल जो हैं ये आपके पास बन जाएंगे, और इसी के कोरेस्पॉन्डिंग मीन्स आपने फाइंड करने हैं। किस तरह से, 3 + 7 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास, फर्स्ट मीन जो आएगा ये 5 हो जाएगा। फिर 3 + 11 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास नेक्स्ट मीन 7 आ जाएगा। इसी तरह से आपने जैसे पिछले पार्ट में आपने किए, इसी तरह से आप इसके कोरेस्पॉन्डिंग सैंपल्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर आपने म्यू एक्स बार लेना है, ठीक है। म्यू एक्स बार कैसे लेंगे, इन मीन्स को आपने डिवाइड करना है 6 के ऊपर, ठीक है। आपने 6 के ऊपर जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे उस पर डिवाइड किया, आपके पास ये आ गया 9, ठीक है। अब आपने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड करना है, वो आप फाइंड करेंगे, और एंड पे जो आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है वो आपने इस तरह से करनी है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट केस में सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है वो आपके पास इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर बाय n, और उसके साथ ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर ये मल्टीप्लाई होता है n-n ओवर n-1, ठीक है। कैपिटल N आपके पास 4 है, स्मॉल n 2 है, तो 4 - 2 4 - 1, और सिग्मा स्क्वायर 20 है, और स्मॉल n आपके पास 2 है। इस सारे को सॉल्व करें तो ये भी आपके पास 6.67 आ रहा है, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी आपके पास 6.67 आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 15.2 on page 162. The question is, a population consists of 6 values 1, 3, 5, 7, 9 and 11. Take all possible samples of size 2 which can be drawn, number 1 with replacement, number 2 without replacement, from this population. Find the sample means and form a sampling distribution of the means in each case. Find the means and variance of the sampling distribution and verify that for mu x bar is equal to mu and sigma square x bar is equal to sigma square by n, and for without replacement mu x bar is equal to mu and sigma square x bar is equal to sigma square by n into n minus n over n minus 1. ये 2010 के पेपर में ये एग्जाम्पल आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आपके पास कैपिटल N क्या है, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 6 हैं, ठीक है। कैपिटल N आपके पास है 6, और साइज 2 के सैंपल ड्रा हुए हैं, तो स्मॉल n क्या हो गया आपके पास, 2 हो गया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे तो इसने नहीं सॉल्व किया, लेकिन मैंने आपको जो स्टेप बताए हैं आपने उसी के मुताबिक चलना है। सबसे पहले आपने पॉपुलेशन मीन जो है वो फाइंड करना है। पॉपुलेशन मीन म्यू, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ठीक है। आपने वो फाइंड करना है।
उसमें क्या होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय n जो है वो 6 है, उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास पॉपुलेशन मीन आ जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन मीन, और वो आपके पास आ रहा है 6। ये अगले पेज पे ये सामने जो है देखें, इसमें उसने फाइंड किया हुआ है। आप फर्स्ट स्टेप में ये फाइंड किया करें। ठीक है, फिर है पॉपुलेशन वेरिएंस, ये नेक्स्ट पेज पे आपको नजर आ रहा है सामने। वेरिएंस आपने फाइंड करना है जिसका फार्मूला है समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक है, आपने इस फार्मूले से, अब फर्स्ट वैल्यू आपकी 1 है, 1 माइनस मीन आपके पास म्यू क्या आया 6 आया, 1 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू x की है 3, 3 माइनस म्यू आपके पास 6 है, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N आपके पास 6 है। ठीक है, अब आपके पास सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 6, 11.67 आ रही है वैल्यू। ये आपके पास आ गया सिग्मा स्क्वायर। अब आपने थर्ड स्टेप जो करना है वो है नंबर ऑफ सैंपल्स फाइंड करने। अब विद रिप्लेसमेंट केस है तो नंबर ऑफ सैंपल्स का क्या फार्मूला होगा फाइंड करने का, n रेज टू कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। ठीक है, कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n, नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। अब कैपिटल N 6 है, 6 रेज टू पावर 2 हो जाएगा तो 36 सैंपल्स जो हैं वो आपके पास 36 सैंपल्स बनेंगे। ठीक है, तो 36 सैंपल्स यहाँ पे ये इस तरह से बनेंगे। आपके पास फर्स्ट है 1 1 1 1 बनेगा, 1 3 1 5 1 7 1 9 एंड 1 11। फिर आप 3 के साथ बनाएंगे 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 एंड 3 11। अब आप 5 के साथ 5 1 5 3 5 5 5 7 5 9 5 11। फिर इसी तरह से 7 के साथ 7 1 7 3 7 5 7 7 7 9 एंड 7 11। फिर आप 9 के साथ बनाएंगे 9 1 9 3 9 5 9 7 9 9 एंड 9 11। अब आपने 11 के साथ बनाने 11 1 11 3 11 5 11 7 11 9 एंड 11 11। ये आपके पास 36 सैंपल्स बन गए और उनके कोरेस्पॉन्डिंग मीन्स आपने फाइंड करने। जैसे 1 1 है तो इसका मीन क्या आ गया 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 1 आ गया, यानी मीन आपने लेना है। 2 वैल्यूज का प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। 3 + 1 1 + 3 आपके पास 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास x बार 2 आ जाएगा। इसी तरह से तमाम सैंपल्स के आपने मीन फाइंड करने हैं। ठीक है, सैंपल बनाए उसके मीन फाइंड किए, ये आपका टेबल आ गया। नेक्स्ट जो टेबल है वो आपका है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। आप इसके ऊपर हेडिंग क्या देंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। अब उसमें आपने ये जो x बार ऊपर फाइंड किए हैं इन वैल्यूज की आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप हम उसको कहते हैं, जैसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे पीछे उसी तरह से आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने ये सारा किया है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आपने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब आपके पास सैम्पल मीन्स क्या है, आपने यहाँ से लेने हैं 1 है 2 भी आ रहा है उसमें 3 है 4 है 5 6 7 8 9 10 एंड 11 तक वैल्यूज हैं। अब आपने फ्रीक्वेंसी इसकी बनानी है। अब आप देखेंगे इन मीन्स के अंदर कि 1 कितनी दफा आ रहा है, एक दफा। 2 आप देखें कितनी दफा रिपीट हो रहा है, इसमें 2 टाइम्स है तो 2 आएगा इसका फ्रीक्वेंसी का। 3 आपने देखना है 3 कितने टाइम्स इसमें आ रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 आ गया। 4 आप इसमें देखें कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है तो 4 आ जाएगा। 5 आप इसमें चेक करें कितने टाइम्स है, एक्स बार के अंदर जितने भी एक्स बार आपने फाइंड किए हैं तो वो 5 टाइम्स है, 5 आ जाएगा। इसी तरह 6 जो है वो 6 टाइम्स, 7 जो है वो 5 टाइम्स है तो 5 आएगा, 8 4 टाइम्स है वो 4 आ जाएगा, 9 जो है वो 3 टाइम्स है तो 3 आ जाएगा, 10 जो है वो 2 दफ़ा इसके अंदर रिपीट हो रहा है 10 तो 2 आएगा, 11 जो है वो एक ही दफ़ा है तो वो 11 1 आ गया। अब देखें इसका समेशन f जो है फ्रीक्वेंसी का सम वो 36 आ रहा है,
नंबर ऑफ सैंपल जितने हैं उतना ही इसका सम होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन कहीं से गलत है, ठीक है, आपने उसको चेक करना है। अब आपने नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो आपने कॉलम फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स बार, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यानी हर फ्रीक्वेंसी उसके टोटल पे डिवाइड होगी। 1 डिवाइडेड बाय 36, 2 डिवाइडेड बाय 36, 3 डिवाइडेड बाय 36, 4 डिवाइडेड बाय 36 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट जो स्टेप है वो है म्यू एक्स बार, मीन ऑफ द मीन्स, सैम्पलिंग मीन्स आपने फाइंड करना है। वो है म्यू एक्स बार से उसको हम डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम आपने फाइंड करना है। एक्स बार के कॉलम को आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है एफ ऑफ एक्स बार का, अब ये ब्रैकेट आपने डालनी है, इसमें ब्रैकेट डालनी जरूर होगी, एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है। आपने एक्स बार फर्स्ट है आपके पास 1 और एफ ऑफ एक्स बार की फर्स्ट वैल्यू है 1/36, तो 1/36 आ जाएगा। एक्स बार जो है वो आपके पास है 2 और इसके कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स बार है 2 डिवाइडेड बाय 36, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। इसी तरह से 3 को हम 3 डिवाइडेड बाय 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। तो इस पूरे कॉलम को इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे और इसका जो सम आ रहा है वो है 216 डिवाइडेड बाय 36 और जो कि इक्वल आ रहा है 6 के। म्यू एक्स बार हमारे पास आ रहा है 6। अब आप देखें आपका म्यू जो फाइंड किया था पहले पॉपुलेशन मीन वो भी 6 है और म्यू एक्स बार भी आपका 6 है, तो यहीं पे आपका वेरीफाई हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कि म्यू एक्स बार जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट केस है चाहे विद रिप्लेसमेंट केस है, हमेशा म्यू एक्स बार मीन ऑफ द सैम्पलिंग मीन इज ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो वो भी 6 है, ये भी 6 है। अब नेक्स्ट आपने वेरिएंस ऑफ द सैम्पल मीन आपने फाइंड करना है, जो कि इसका फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, या उसको डायरेक्टली आप लिख दे म्यू एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम हमें चाहिए। आपने एक्स बार का स्क्वायर करते जाना है और उसको एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये तो 1 है, 1/36 ही आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/36 से, तो ये आपके पास 8/36 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर लेंगे और उसको 3/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 27/36। इस तरह से पूरा कॉलम आपने फाइंड करना है। आपके पास इसका सम आ रहा है 1506 डिवाइडेड बाय 36। यहाँ पे इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस म्यू एक्स बार 6 है, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। इसमें से 36 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आ रहा है 5.83, ठीक है। अब सेकंड इसमें ये तो आपके पास ये आ गया, आपने ये फाइंड कर लिया विद रिप्लेसमेंट केस में। अब आपका नेक्स्ट जो केस है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने सैंपल बनाने हैं और फिर उनका मीन ऑफ द सैंपल मीन और वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब आपने विदाउट रिप्लेसमेंट केस में एन स्मॉल एन 2 है और कैपिटल एन आपके पास 6 है और फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू एन सी एन, कैपिटल एन सी स्मॉल एन, ठीक है, 6C2। और इस कॉम्बिनेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वल आ जाता है 15 के, यानी 15 सैंपल्स बनेंगे। अब इसमें आप विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे सैंपल बनाएंगे, इसमें देखें आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, पॉपुलेशन जो वैल्यूज हैं वो 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब इसमें आपका रिपीट नहीं होगा, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, अब आगे आगे चलते जाएंगे। क्या होगा, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1, 11। अब 3 के साथ बनेंगे 3, 5, 3, 7, 3, 9, 3, 11। फिर 5 के साथ 5, 7, 5, 9, 5, 11। फिर 7 के साथ बनेंगे 7, 9, 7, 11। अब 9 के साथ 9, 11। ये आपके पास आ गए सैंपल 15, ठीक है, 15 सैंपल। और अब इनके कोरेस्पॉन्डिंग आपने मीन्स फाइंड करनी है, ठीक है, एक्स बार फाइंड कर लेने जो कि आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास मीन्स आ गए। अब म्यू एक्स बार फाइंड करने के लिए आप इन मीन्स का सम ले लें और इसको जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड कर दें तब भी ठीक है, या फिर उसी तरह से आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हैं और उस फार्मूले से आप इसको सॉल्व करते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों तरह से ठीक है, इस तरह से
भी आप कर सकते हैं। आप टेबल जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का है, जैसे एक्स बार फिर फ्रीक्वेंसी फिर एफ ऑफ एक्स बार फिर एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार, वो फाइंड करने के बाद आपने म्यू एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपने फाइंड करना है। उस तरह से करते हैं वो भी ठीक है, अगर इस तरह इस मेथड से करते हैं ये भी ठीक है। आपने म्यू एक्स बार फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये जो आपके पास मीन्स आए हैं सैंपल के, इनको आपने नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड कर देना है, जो कि आपके पास 6 आ रहा है। और आपने म्यू जो फाइंड किया था पॉपुलेशन मीन, वो भी आपके पास 6 आ रहा था, तो आपका इसमें भी विदाउट रिप्लेसमेंट केस में भी म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। और ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि इन बोथ द केसेस म्यू एक्स बार इज आल्सो ऑलवेज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट केस में आपके पास होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। विद रिप्लेसमेंट में ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन के, और विदाउट रिप्लेसमेंट केस में ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1, यानी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इससे आप देखें ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की जो वैल्यू आ रही थी वो 5.83 आ रही है, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट केस में 5.83 आ रही है, और पीछे जो आपने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड किया वो भी आपके पास 5.83 आ रहा था, ठीक है। ये आपका विद रिप्लेसमेंट केस में ये वेरिफिकेशन हो गई। और विदाउट रिप्लेसमेंट केस में आपका जो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू है वो है 4.67 जो आपने कैलकुलेट की। अब यहाँ से जो आपने जब वेरीफाई उसको किया, यहाँ से जो कैलकुलेट हुई वो भी 4.67 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन सही किया, आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने वेरिफिकेशन तक ये करना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है, और फिर उसके बाद पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपसे कहा गया तो वो फाइंड करना है, वरना पॉपुलेशन वेरिएंस तक ही आपने करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, फिर आपने देखना है कि विद रिप्लेसमेंट केस है या विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, उसी के मुताबिक आपने फार्मूला यूज करना है, और नंबर ऑफ सैंपल्स आपने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स फिर उनके मीन्स आपने फाइंड करने, फिर उसके बाद आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन करना है, और म्यू एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड करना, और एंड पे उसको वेरीफाई करना है। ये हैं स्टेप्स आपके सैम्पलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स को सॉल्व करने के लिए या उसको करने के लिए। Now the example is 15.3 part A on page 164. The question is a population consists of 4 numbers 2, 4, 6, 8. Make all possible samples of size 3 which can be drawn with replacement. Second one is without replacement from the population. Find the mean and variance of the sampling distribution of mean. और B part उसमें क्या है कि verify for mu x bar is equal to mu sigma square x bar is equal to sigma square by n, ये with replacement के लिए है, और second के लिए क्या है without replacement के लिए mu x bar is equal to mu and sigma square x bar is equal to sigma square by n into n minus n over n minus 1. The first case is with replacement case. We have कैपिटल N इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो कितनी हैं 4 हैं, और साइज 3 के सैंपल्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल n कितना है 3। अब आपने अभी तक जो आपको मैंने बताया या पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे सैंपल बनाने, वो आपको साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने आप सैंपल बनाने आपने सीखे हैं। अभी हम जो करने जा रहे हैं इस साइज 3 के सैंपल आप सीखने जा रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट आपने बनाने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों के लिए आपने साइज 3 के सैंपल बनाने हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने स्टेप जो करना है वही स्टेप म्यू आपने पॉपुलेशन मीन आपने फाइंड करना है, फिर पॉपुलेशन वेरिएंस आपने फाइंड करना है। अब पॉपुलेशन मीन आपका क्या किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, उसके इक्वल होता है, ठीक है। और वो आपके पास आ रहा है 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 4, और ये आपके पास आ रहा है 5 के इक्वल। नेक्स्ट पेज पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपका 5 के इक्वल आ रहा है। फिर आपने फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर,
ठीक है, वेरिएंस जो कि इक्वल होता है समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N के। तो उस वो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। 2 माइनस म्यू आपके पास 5 है होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर आ गया 5, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सैंपल्स। विद रिप्लेसमेंट केस में नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n 4 रेज टू पावर 3, ठीक है। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। 64 सैंपल्स आपके बनेंगे विद रिप्लेसमेंट केस में। तो आपने किस तरह से बनाने हैं देखें, आपको मैंने जो है ना इसमें आगे क्वेश्चन एक करेंगे उसमें आपको एक टेबल सब मैंने बताया हुआ है, तो आपने उसको सामने रख के ये बनाने हैं। किस तरह से बनाएंगे आप, 2 2 2 2 पहले इसके साथ बनेंगे, ठीक है। फिर 2 2 4, पहले ये ना शुरू का जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपका जो नंबर होगा पहले वो चेंज होगा, फिर दरमियान वाला चेंज होगा, फिर जो इधर होगा लेफ्ट साइड पे फर्स्ट वाला नंबर होगा, फिर वो चेंज होगा। आपने इस तरह से उसको देखना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्या बनेगा 2 2 2, ये अपने साथ बनाएगा। फिर 2 2 4 2 2 6 2 2 8, ठीक है, ये बन गए। अब फर्स्ट हमने ये जो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट नंबर था ये चेंज हो गया, यहाँ 8 तक चेंज हो गया। अब नेक्स्ट आप कैसे बनाएंगे, अब दरमियान में, अब ये जो अगला नंबर होगा ये अब दरमियान में आ जाएगा, 2 की जगह क्या होगा 2 4 2 2 4 6 2 4 8, आ गई समझ। अब आपने अगला नंबर दरमियान में रखना है, अब दरमियान वाले चेंज होंगे, ठीक है। दरमियान अगला नंबर दरमियान में कौन सा आएगा 6 आएगा, ठीक है। पहले शुरू वाला नंबर चेंज होगा, फिर दरमियान वाला नंबर चेंज होगा, फिर इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर जो है ये आपका चेंज होगा। अब आपने 6 को दरमियान में रखना है, 2 6 2 2 6 4 2 6 6 2 6 8, ये आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब आपने दरमियान में 8 को रखना है, 8 के साथ बनाना है आपने 2 8 2 2 8 4 2 8 6, ये बन गए। अब आपने क्या करना है कि शुरू का नंबर अब आपने ये वाला चेंज करना है। आपने पहले इधर वाला नंबर चेंज किया, फिर दरमियान वाला चेंज किया, अब इस तरफ वाला नंबर चेंज होगा। अब इधर क्या आएगा 4 4 2 2, ठीक है। 4 2 4 4 2 6 4 2 8, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर आपने 4 को दरमियान में रखना है, 4 4 2 4 4 6 4 4 4 भी आएगा 4 4 ठीक है, 4 4 6 4 4 8, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने दरमियान में रखना है 6 को, 4 6 2 4 6 4 4 6 6 4 6 8, फिर आपने दरमियान में रखना है 8 को, ठीक है। 2 8 2 2 8 4 2 8 6 2 8 8, ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। सॉरी 4 8 8, ये आपके पास आ जाएगा 4 आपने। अब नेक्स्ट जो है आपका चेंज होगा, 4 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 6 आएगा, सॉरी नेक्स्ट नंबर 6 है। तो 6 2 2 6 2 4 6 2 6 6 2 8, अब दरमियान वाला चेंज होगा 6 4 2 6 4 4 6 4 6 6 4 8। अब अगला दरमियान वाला, फिर अगला कौन सा नंबर है 6। अब यहाँ पे क्या आएगा 6 6 2 6 6 4 6 6 6 एंड 6 6 8, ठीक है। अब दरमियान में 8 आएगा 6 8 2 6 8 4 6 8 6 एंड 6 8 8, ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आपने 8 के साथ बनाने 8 2 2 8 2 4 8 2 6 8 2 8 8 4, अब 2 दरमियान वाला आगे 4 चेंज होगा 8 4 2 8 4 4 8 4 6 8 4 8, अब दरमियान में 6 आएगा 8 6 2 8 6 4 8 6 6 8 6 8, अब दरमियान में 8 आएगा, ठीक है। 8 8 2 8 8 4 8 8 6 8 8
8 ट्रिपल 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 64 सैंपल्स आपके बन गए। अब इसी के कोरेस्पॉन्डिंग आपने मीन्स भी फाइंड करने हैं। मीन्स कैसे फाइंड करेंगे, 3 वैल्यूज हैं, 3 पे डिवाइड होंगी। 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3, 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 + 2 + 4, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा 2.67। इसी तरह से आपने सारे एक्स बार फाइंड कर लेने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स आपने बनानी है। एक्स बार लिखने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी उसी तरह से फाइंड करनी है। फिर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी का सम देखें आ रहा है 64, जो कि नंबर ऑफ सैंपल्स के इक्वल है। अब फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने करनी है, जो कि हर फ्रीक्वेंसी अपने टोटल पे डिवाइड होगी। फिर आपने एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम फाइंड करना है। फिर एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम फाइंड करना है। फिर आपने म्यू एक्स बार देखना है, जो कि इक्वल है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार के, और ये आपके पास इक्वल आ जाता है 5 के। ठीक है, क्योंकि टोटल आपके पास आ रहा है एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। एक्स बार के कॉलम को एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपके पास कॉलम आ जाएगा, और इसका सम है 320/64, जो कि इक्वल टू 5 आ रहा है म्यू एक्स बार। अब आप देखें, आपके पास जो म्यू आया था वो भी 5 है, और आपके पास म्यू एक्स बार जो आया है वो भी 5 है। फिर आपने नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का क्या फार्मूला है, समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, अब समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम आपने फाइंड करना है, इसका सम आपने उसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। म्यू एक्स बार की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आ रहा है 1.67। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास है वो इन्होंने जो हमें बताया, इसकी वेरिफिकेशन भी आप विद रिप्लेसमेंट में कर लें। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू होता है, और वो दोनों केसेस में पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है, सैंपल मीन जो होता है। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार विद रिप्लेसमेंट केस में ये एंड पे आपको नजर आ रहा होगा, इस इक्वल टू किसके है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन के। अब सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आ रहा था, पॉपुलेशन जो वेरिएंस है वो है 5, वो भी आपके पास 5 है। 5 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन कितना था, सैंपल साइज जो था 3, तो इस पे डिवाइड करें 1.67 आ रहा है, और यही सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो भी 1.67 है। ये आपका वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसने कहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट आप सैंपल जो हैं वो ड्रॉ करें, सैंपल बनाएं साइज 3 के। अब विदाउट रिप्लेसमेंट आप देखें, आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन के इक्वल होता है। एन आपके पास 4 है, और जो है स्मॉल एन आपके पास 3 है, तो 4C3 ये 4 सैंपल बनेंगे आपके पास। किस तरह से बनेंगे आप इसको देखें, ये पीछे नहीं जाएगा, आगे की तरफ बनाएंगे। 2 4 6 2 4 8, ठीक है, ये आपके पास बन गया। फिर 4 6 8, ये आपके पास 2 6 क्या बनेगा, 2 6 8 बनेगा। फिर आपके पास 4 6 8 का सैंपल बनेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गए 4 सैंपल, और इनका फिर आपने इसी तरह से मीन फाइंड करना है। फर्स्ट का मीन है 2 + 4 + 6, ये आपके पास 12, 12 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास फर्स्ट का मीन आ जाएगा 4। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यूज हैं 2 4 8, इनको प्लस किया और 3 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास 4.67, ये इसका मीन आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 2 + 6 + 8, इनको 3 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास 5.33 आ गया, और 4 + 6 + 8 को 3 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास 6 आ गया। ये इनके मीन्स हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपने म्यू एक्स बार फाइंड करना है। आप इस सिंपल मेथड से भी इसको कर सकते हैं कि तमाम सैंपल्स का जो मीन है उनको प्लस करके आप उसको नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास म्यू एक्स बार 5 आ रहा है, जो कि वेरीफाई हो रहा है, आपके पॉपुलेशन मीन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आपने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड करना है, और उसको इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, या आप दोबारा इस तरह का टेबल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का बना लें, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है, इन वैल्यूज़ को जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं मीन्स की, अब फर्स्ट मीन की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 माइनस आपके पास म्यू एक्स बार 5 आया है,
5 में से माइनस करेंगी और होल स्क्वायर लेंगे, प्लस आपके पास नेक्स्ट जो मीन है एक्स बार वो 4.67 है, माइनस आपके पास म्यू जो है वो आपके पास म्यू एक्स बार वो आपके पास आया है 5 में से माइनस करेंगे होल स्क्वायर लेंगे, इसी तरह से प्लस नेक्स्ट आपका जो मीन है वो 5.33 है, माइनस म्यू एक्स बार 5 है इसका होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आ रहा है 0.55445। ठीक है, अब आपने इसको विदाउट रिप्लेसमेंट केस था, इसको वेरीफाई करना है। म्यू एक्स बार तो म्यू के इक्वल है, दोनों केसेस में एक जैसा होता है और इसमें ये दोनों 5 आ रहे हैं, ये वेरीफाई हो गया है। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है वो आपके पास आ रहा है 0.55445 और तो इसको आपने देखना है कि क्या इसकी इक्वल ये आता है, इनमें वैल्यूज पुट करके सिग्मा स्क्वायर 5 है, एन 3 है, कैपिटल एन जो है वो 4 है, माइनस स्मॉल एन 3 है, इस तरह से 4 माइनस 3 4 माइनस 1, इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0.556 ये वैल्यू आ रही है, तकरीबन ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास है जो है इसका आंसर आ गया। नाउ द एग्जाम्पल इज 15.4, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुकी है। The question is the weights of 1000 students of a college are normally distributed with mean 68.5 kg and standard deviation 2.7 kg. If 200 random samples of 25 students each are obtained from this population, find the expected mean and standard deviation of the sampling distribution of means. If sampling were done with replacement and without replacement. ये 2008 के पेपर में आ चुका है। अब इसका सोल्यूशन देखें। द नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ साइज 25, ठीक है, स्मॉल एन जो है वो आपके पास क्या है 25 है और कैपिटल एन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1000। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा n रेज टू पावर n और विदाउट रिप्लेसमेंट में होगा कैपिटल एन सी स्मॉल एन। ठीक है, ये दोनों में आपके पास अब 1000 की पावर 25 आ गया और यहाँ पे जो है विदाउट रिप्लेसमेंट 1000 सी 25 हो जाएगा, विच इज़ मच लार्जर देन 200, जो कि 200 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। सिंस द नंबर ऑफ सैंपल्स इज लार्ज, there will be close agreement between the two sampling distribution of 200 samples, and the expected mean and standard deviation of the sampling distribution of 200 samples would be close to those of the theoretical distribution. Here n is equal to small n is equal to 25, capital N is equal to 1000. म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 68.5 kg और सिग्मा दिया हुआ है 2.7। तो अब आप देखें विद रिप्लेसमेंट केस में क्या होगा, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू जो कि 60, अगर म्यू आपके पास उसने जो वैल्यू दी हुई है 68.5 है तो म्यू एक्स बार भी 68.5 होगा और इसी तरह से सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होगा, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ये स्टैंडर्ड एरर है। ठीक है, सिग्मा एक्स बार इज द स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। ठीक है, ये इक्वल टू किसके होगा, सिग्मा और अंडर रूट एन के। अब सिग्मा यहाँ पे 2.7 दिया हुआ है, अंडर रूट एन, एन की वैल्यू है 25, तो ये सिग्मा एक्स बार आ जाएगा 0.54। अब विदाउट रिप्लेसमेंट केस में क्या होगा, उसमें भी म्यू एक्स बार जो है वो म्यू के इक्वल होता है और सिग्मा एक्स बार जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें क्या होता है कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। अब सिग्मा की वैल्यू है 2.5 और एन है 25, कैपिटल एन है 1000 माइनस स्मॉल एन है 25, तो ये सारे को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 0.53 kg, ये दोनों उसमें आपने फाइंड कर लिया। इस तरह का क्वेश्चन जो है ये एक दो दफ़ा एक और पेपर में भी आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसको समझना है, बहुत ही आसान है।
Question number 15.1 from your exercise. The question is, taking all possible samples of size 2 with replacement from the population 1, 3, 5, 7, show that the population mean is equal to the mean of the means of all samples and population variance is twice the variance of the sample means. What would be the variance of the sample means if sample were drawn without replacement? ठीक है, पहले विद रिप्लेसमेंट है, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट भी आपने इसको देखना है। अब आपने इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, 4 हैं, और साइज 2 के सैंपल जो हैं वो ड्रा करने हैं इसमें से, और वो है एन, स्मॉल एन जो होगा वो हमारे पास 2 हो जाएगा। अब विद रिप्लेसमेंट केस, फर्स्ट केस क्या है, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें हमने सबसे पहला स्टेप जो है पॉपुलेशन मीन फाइंड करना होता है। म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, आपने तमाम वैल्यूज का सम किया और उसको कैपिटल एन 4 है, 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास म्यू आ गया, पॉपुलेशन मीन आ गया 4। हमने फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है, जो कि इक्वल है समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के। तो वो हम फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के। तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ रहा है 5 के इक्वल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, उसमें है नंबर ऑफ सैंपल्स। नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू, इन विद रिप्लेसमेंट केस, n रेज टू पावर n। ठीक है, अब कैपिटल N जो है वो 4 है और स्मॉल n 2 है, तो ये 16 सैंपल्स इसमें बनेंगे। तो हमने विद रिप्लेसमेंट साइज 2 के 16 सैंपल्स बना लिए, 1 1 1 3 1 5 1 7, फिर 3 1 3 3 3 5 3 7, फिर 5 1 5 3 5 5 एंड 5 7, फिर 6 के साथ, सॉरी 7 के साथ 7 1 7 3 7 5 एंड 7 7। ये हमने इसके 16 सैंपल जो हैं वो बना लिए और उसके कोरेस्पॉन्डिंग मीन भी हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अभी पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ मीन क्या होगा, 2 वैल्यूज का प्लस करके उसको 2 नंबर ऑफ वैल्यूज 2 हैं उस पर डिवाइड करना है। ठीक है, मीन आ गया। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स फाइंड करना है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स में हम क्या करते हैं, एक्स बार, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और फिर उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर म्यू एक्स बार का जो फार्मूला है वो है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। तो उसके लिए हमें एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम चाहिए। ठीक है, उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, जो कि हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 16 आ रही है, और म्यू एक्स बार हमारे पास आ गया 4 के इक्वल, और ये इक्वल है हमारे पॉपुलेशन मीन म्यू के। ठीक है, और फिर हमने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन सिग्मा स्क्वायर एक्स बार विच इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसके लिए समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार के लिए एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम हमने फाइंड किया, जो कि हमारे पास है 296 डिवाइडेड बाय 16 के, माइनस म्यू एक्स बार है 4 का स्क्वायर, और इस सारे को सॉल्व करने के बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू है 2.5। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। म्यू एक्स बार जो है वो इक्वल टू म्यू होता है, जो कि 4 है वो भी और वो भी 4 है। ठीक है, दोनों 4 आ रहे हैं आपके पास। और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है इन विद रिप्लेसमेंट केस इट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन। अब सिग्मा स्क्वायर आपके पास 5 है और स्मॉल एन जो है वो है 2। ठीक है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आता है, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी आपके पास 2.5 आ रहा है। ये आपकी वेरिफिकेशन हो गई इसकी। अब सेकंड जो उसने कहा है कि अगर हम what would be the variance of the sample means if samples were drawn without replacement, कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हम ड्रा करते हैं तो उसके लिए क्या होगा वो हम देखते हैं। सेकेंड हमारा है विदाउट रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट केस में नंबर ऑफ सैंपल जो हम फाइंड करते हैं वो होता है, उसका क्या फार्मूला है, NCN 4C2। इसके जब इसको कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करते हैं हमारे पास 6 नंबर ऑफ सैंपल जो हैं वो बनेंगे। तो हम 6 सैंपल्स इसके बना लेते हैं, 1 3 1 5 1 7 3 5 3 7 एंड 5 7।
ठीक है, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग मीन्स फाइंड कर लिए। अब हमने नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनानी है, एक्स बार की वैल्यूज लिखनी है, फ्रीक्वेंसी बनानी है, फिर एफ ऑफ एक्स बार रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने करनी है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स सम। ठीक है, अब म्यू एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम चाहिए, वो हम फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट वेरिएंस फाइंड करने के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स बार के लिए हमें कॉलम चाहिए एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। तो म्यू एक्स बार हमारे पास आ रहा है 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 4 के आ रहा है, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार में जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1.67 के इक्वल आ रहा है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरह से करेंगे कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, वो विद रिप्लेसमेंट केस हो या विदाउट रिप्लेसमेंट केस, दोनों में वो इक्वल होते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क जो है वो किस में आता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार में। अब यहाँ पे जो विदाउट रिप्लेसमेंट केस में होगा ये इक्वल होगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन मल्टीप्लाई होता है विदाउट रिप्लेसमेंट केस में। ठीक है, अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो हमने कैलकुलेट किया वो है 1.67, और यहाँ से इनमें वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये भी हमारे पास 1.67 आ रहा है। ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 15.3। ठीक है, 15.3 क्वेश्चन है, और उसका ए पार्ट है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज 2, 6, 10 एंड 14। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 which can be drawn with replacement from this population and find means of these samples. The second है, make a sampling distribution of the sample means and show that the variance of this distribution is equal to the population variance divided by the sample size, यानी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो हम करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज, ये हमने करना है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स होंगे। कैपिटल एन हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो 4 हैं, स्मॉल एन साइज 2 के सैंपल्स बनाने हैं। आपने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है, फिर पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है, फिर नंबर ऑफ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट केस में आपका फार्मूला क्या है, n रेज़ टू पावर n 4 रेज़ टू पावर 2 16 सैंपल्स बनेंगे, वो आपने बनाने हैं, उसके मीन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, उसके मीन कैलकुलेट करने के बाद आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनानी है। उसमें क्या है, एक्स बार का कॉलम, फिर आपने फ्रीक्वेंसी उसी तरह से उसका कॉलम फाइंड करना है, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार, फिर म्यू एक्स बार के लिए आपको एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम चाहिए, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार के लिए आपको एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम चाहिए। ये आप फाइंड कर लेंगे, और फिर म्यू एक्स बार का फार्मूले में आपने वैल्यू पुट की, समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार वो है 128 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपके पास 8 आ रहा है। जबकि पॉपुलेशन मीन जो आपने फाइंड किया है वो भी आपके पास 8 आ रहा है, और पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास आ रहा है 20। ठीक है, अब आपने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन्स ये आपने फाइंड करना है। उसके फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास आ रही है 10। अब आपने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। म्यू एक्स बार जो है वो म्यू के इक्वल होगा, जो कि वो भी 8 आ रहा है और वो भी 8 आ रहा है, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार विद रिप्लेसमेंट केस में क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल होता है। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया ये 10 आ रहा है। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस 20 है, और स्मॉल एन आपके पास सैंपल साइज है 2, तो ये भी आपको इसमें वैल्यूज पुट करने से इक्वल टू 10 आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट आप कैसे करेंगे, बी पार्ट वो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। अ लार्ज नंबर ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 आर ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स वर ऑब्टेन्ड एज 20500 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। फाइंड म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें स्मॉल एन आपके पास क्या है, 5 है,
और म्यू एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे मीन ऑफ द सैंपल, मीन आपको क्या दिया हुआ है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, वो किसके इक्वल होता है, म्यू एक्स बार, और उसकी वैल्यू दी हुई है 20500, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार यानी वेरिएंस ऑफ द मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन वो आपके पास है 25, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपके पास है 25। इन वैल्यूज से आपने जो है पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है। अब आपको पता है म्यू एक्स बार हमेशा पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। अगर म्यू एक्स बार आपके पास 20500 है तो पॉपुलेशन मीन भी आपके पास 20500 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन जो है वो किसके इक्वल है, म्यू आपके पास क्या आ गया 20500। अब विद रिप्लेसमेंट केस में सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपके पास किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल होता है। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे 2.5 और स्मॉल एन हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास आ गया 125। ठीक है, तो इससे हमने म्यू और सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15.5, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ नंबर्स 15, 20, 16, 32 and 40. Samples of size 2 are drawn without replacement from this population. What is the number of all possible samples? Find the sample means and then find the mean and variance of these sample means. Verify the result. ठीक है, और वो क्या है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। इसमें भी इसी तरह से फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैपिटल एन हमारे पास 5 है, स्मॉल एन 2 है, साइज 2 के सैंपल्स हमने बनाने हैं और ये 5 नंबर्स हैं हमारे पास, पॉपुलेशन 15, 20, 16, 32 एंड 40। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है, फिर हमने पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है, फिर थर्ड स्टेप उसमें है नंबर ऑफ सैंपल्स हमने फाइंड करने हैं, जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट केस है तो उसमें इक्वल होते हैं एन सी एन के, तो वो हमारे पास 10 सैंपल्स बनेंगे। हमने 10 सैंपल्स बनाए विदाउट रिप्लेसमेंट, किस तरह बनेंगे, 15, 20, 15, 16, 15, 32, 15, 40। ठीक है, फिर हम 20 के साथ बनाएंगे 20, 16, 20, 32, 20, 40 एंड 16, 32, 16, 40 एंड 32, 40। ये हमारे पास जो है सैंपल्स बनेंगे, इनके मीन हमने फाइंड कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स हमने जो है इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन वो हम बनाएंगे। अब इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए एक्स बार का कॉलम, फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम, फिर इसी तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम हमने फाइंड किया। फिर उसका हमें म्यू एक्स बार के लिए जो कॉलम चाहिए एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें कॉलम चाहिए एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम, ये हमने फाइंड कर लिए। तो म्यू एक्स बार हमारे पास आ रहा है इक्वल टू किसके होता है, समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, और इस कॉलम का सम हमारे पास आ रहा है 246 डिवाइडेड बाई 10 जो कि इक्वल होगा 24.6 के। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो है वो हमारे पास आ रहा है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू आ रही है 35.94। अब देखें हमारे पास म्यू एक्स बार 24.6 है, तो पीछे हमने जो पॉपुलेशन मीन फाइंड किया वो भी हमारे पास 24.6 आ रहा है। ठीक है, अब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट केस है तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किसके इक्वल होगा वेरिफिकेशन में, सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। इसमें वैल्यूज पुट की तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया ऊपर वो भी 35.94 आ रहा है, और इनमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये भी 35.94 ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। Students, this is your today's home task. Question number 15.2 from your exercise, and question number 15.4 part A and B, and question number 15.7. Solve these questions and send in your subject group.